1. Who would be reading the verses? Who is reading the verses? Angel? Yeah. Jeshurun, you can send the verses to Angel. Verses. Genesis chapter 12 and verse 1. The Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household and go to the land I will show you. तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने नगर को छोड़ो, अपने लोगों को छोड़ो, अपने पिता के घराने को छोड़ो और उस जगह पे जाओ जो मैं तुमको दिखाता हूँ. So God said, I will show you. The Lord didn't show Abraham the land at first. परमेश्वर ने वो ज़मीन जो है इब्राहिम को पहले नहीं दिखाया कि इब्राहिम वो देखो वो ज़मीन है वो मैं तुमको दूंगा. परमेश्वर ने उसको कहा लीव गो, मैं तुमको दिखाऊंगा. I will show you. So God told him. God didn't show him at first. God told him. And Abraham, he took God at his word. Whatever God said, he took it to his heart and he moved out in faith. He heard the voice of God. He saw God because God would appear to him. He heard God and he moved out. So when we hear God, when we hear the voice of God, then are we willing to believe God? जब हम परमेश्वर की आवाज़ को जब हम सुनते हैं, जब हम परमेश्वर को हम सुनते हैं, क्या हम विश्वास कर पाते हैं? हाँ प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा मैं करूँगा. Do we then move out in faith? क्या हम विश्वास में फिर हम आगे बढ़ते हैं? Are we able to stand in faith? क्या विश्वास में हम दृढ़ खड़ा रहना चाहते हैं? कभी कभी क्या होता है, हम निकल तो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद we find क्या पता ये मैंने ठीक से सुना नहीं सुना. We begin to waver. But Abraham was not such. Abraham निकला और साथ साथ में वो खड़ा रहा. जैसे परमेश्वर ने उसको कहा वैसा वैसा वो उसने किया. क्या उसने उस ज़मीन को देखा? नहीं देखा था अभी तक. Till Genesis chapter 1 and verse 2 and 3 he had not seen the land. उसने ज़मीन नहीं देखी. सिर्फ प्रभु के कहने पर वो निकला. In faith. In the same way, are we able also to move on in faith? Once God has spoken, एक बार जैसे प्रभु ने बात किया, फिर उसको पकड़े रहो. परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में बात किया होगा, प्रभु ने आपके जीवन के उद्देश्य के लिए बात किया होगा. Hold on in faith and move out in faith. He did not see the land, he had only heard God. And God said some great things. Let's read verse 2 in Hindi. In English it is written, I will make you into a great nation and I will bless you. Let's read in Hindi. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. So God says two things. I make you into a great nation. मैं तुम्हें एक great nation is what? महाराज, महान राष्ट्र बनाऊंगा मैं तुमको. And I will bless you. और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. I will make you into a great nation. एक महान राष्ट्र बनाऊंगा. Now when you look around, you will see great nations around here. There are many great nations. Dubai is a great nation. US is a great nation. महान राष्ट्र हैं. But many great nations are without the blessing of God. So here God says, I will make you into a great nation and I will bless you. That's important for us. It's good to be great. There's nothing wrong in being great. But we must have the blessings of God. महान होना कोई बड़ी खराब बात नहीं है. प्रभु आपको चीफ मिनिस्टर बना देते या कोई कंपनी के सीईओ बना देते, उसमें कोई गलती नहीं है, अच्छी चीज़ है. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. मगर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आशीष हमारे साथ रहे. सो गॉड सेड, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू. So this is what we must ask for. Not like many great nations who are great, but they are sans God, without God. God is nowhere in the picture. God is nowhere in the nation. Israel right now is a great nation, but they are without God. In the same way, we must also ensure that God makes us great. Right now itself, God is moving us towards greatness because of His great promises. Parmeshwar हमें great is what? Sorry about that.
महानता की तरफ परमेश्वर हमें ले जा रहे हैं, पर हमें साथ में याद रखना है परमेश्वर की आशीष भी हमारे साथ रह सके। एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन वी वॉक विद गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ आप और हम चलेंगे। सो वी मस्ट हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ऑल्सो इन आवर लाइव्स। तो गॉड सेज हियर, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बनाऊंगा एक महान राष्ट्र। परमेश्वर ने अभी अब्राहम को एक महान राष्ट्र नहीं बना दिया था। इन जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 and 2 परमेश्वर ने उसको एक महान राष्ट्र नहीं बनाया था, एक महान देश नहीं बनाया है। परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बनाऊंगा सम टाइम इन द फ्यूचर, सम ग्रेट डे इन द फ्यूचर, व्हेन Abraham's descendants would increase, जब अब्राहम के संतान बहुतायत से बढ़ेंगे। बट देन गॉड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट, यस ही टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में प्रभु बात करते हैं, मगर साथ साथ में परमेश्वर प्रेजेंट के बारे में भी बात करते हैं। ही सेज आई विल ऑल्सो मेक योर नेम ग्रेट, मैं तुम्हारे नाम को भी ऊंचा उठाऊंगा। एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, इंडिविजुअली यू विल बी अ ब्लेसिंग, और तुम एक आशीष का एक कारण तुम बनोगे अब्राहम। यस, फ्यूचर में तुम्हारा नाम बहुत बड़ा रहेगा, फ्यूचर में तुम्हारे संतान के द्वारा बहुत कुछ होएगा, पर अभी भी मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग बनाऊंगा। सो दैट्स हाउ गॉड वर्क्स, ही वर्क्स फॉर द फ्यूचर, ही ऑल्सो वर्क्स फॉर द प्रेजेंट। परमेश्वर आगे के लिए भी कार्य करते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, और अभी में भी प्रभु काम करते हैं। सो ही सेज यू विल बी अ ब्लेसिंग, you will be a blessing. Now most of us, we want the blessings of God. Who doesn't want the blessings of God? I'm sure all of us, we want the blessings of God. हम सबको परमेश्वर की आशीषें हमें चाहिए, and God wants to give it to us, but we must remember we are blessed so that we can also bless others. This is what God told Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम दूसरों के लिए आशीषित रहोगे। We are blessed so that we can bless. We must remember this. अगर परमेश्वर ने आपको आत्मिक नीति से बढ़ाया, इसलिए है कि आप और हम दूसरों को बढ़ाएं। अगर प्रभु ने आपको मॉनेटरीली बढ़ाया, इट इज सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स। और किसी ने आपको और कोई तरीके से बढ़ाया, इट इज सो दैट यू कैन ब्लेस अदर्स, यू कैन हेल्प अदर्स। वी आर ब्लेस्ड सो दैट वी कैन ब्लेस अदर्स। वर्स 3 हिंदी में देखते हैं। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू, जो तुम्हें आशीषित करते हैं मैं उनको भी आशीषित करूंगा, और जो तुम्हें श्राप देगा मैं उनको भी श्राप दूंगा। सो गॉड टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स, ही टॉक्स अबाउट दैट व्हेन वी आर ब्लेस्ड वी ऑल्सो शुड ब्लेस। जब हमें आशीष मिलता है हमें भी दूसरों को आशीष देना है। फिर प्रभु बात करते हैं श्रापों के बारे में। जो कोई तुम्हें एक श्राप देगा मैं भी उसको श्राप दूंगा, ये यहोवा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। एंड द हिब्रू वर्ड फॉर कर्स, इन देयर आर टू वर्ड्स फॉर कर्स व्हिच आई मेंशनड आउट हियर। वन इज इफ समबडी कर्सेस यू then I will curse him. That is, there are two words of curse. The first word for curse in the Hebrew is kaulal. इब्रानी में जो श्राप का शब्द है वो पहला वाला जो पहले बार जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कौलाल, which means to disrespect. Disrespect means हिंदी अनादर करना। It also means to make small, किसी को छोटा दिखाना। It also means to bring contempt. Bring contempt, निंदा नहीं, तुच्छ समझना, तुच्छ समझना। It also means to despise, which is also again तुच्छ समझना। So whoever curses you, it basically means that when you read this line, it means whoever disrespects you, who makes you small, who contempt you, who despises you, will I curse? How serious God looks at this, कि अगर कोई भी तुझे तुच्छ समझता है और तुमको डिस्पाइज करता है और तुमको डिसरिस्पेक्ट करता है तो फिर मैं भी उसको श्राप दूंगा। The other word for श्राप, the other word for curse which is used in Hebrew is not kaulal, but the other word is aurar, which means to bitterly curse. मतलब पूर्ण तरीके से मैं श्रापित कर दूंगा, ये परमेश्वर कहते हैं। आप और हम श्राप किसी को नहीं दे सकते हैं, मगर परमेश्वर ही करते हैं, क्योंकि प्रभु बनाते हैं, प्रभु ने हमें बनाया है, उनके ऊपर पूरा हक है, जैसा भी वो करना चाहते हैं अपनी सृष्टि के साथ वो कर सकते हैं, वो बॉस है।
आप और हम नहीं कर सकते हैं. So God says, whoever does this against you, God will do things against us. Therefore, don't be afraid. There are times when you feel that somebody is winning against you, he is doing all sorts of things against you. आपको लगता है कोई आपके ऊपर आपको मारे जा रहा है, तंग करे जा रहा है, शैतान कर रहा है या मनुष्य कर रहा है या हमारे कई स्टेट्स में प्रभु के बच्चों को सताया जाता है, बहुत तंग करते हैं. डोंट वरी, परमेश्वर ही हमारा न्यायाधीश है. प्रभु भी अपना कार्य ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु करेंगे, उनको श्रापित परमेश्वर करते हैं जैसे प्रभु ने अपने वचन में बोला है. Therefore, we should also be careful of disrespecting others. हमें चिंता नहीं करना है कौन हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है. अगर कोई हमें श्रापित करता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए that we should also not disrespect anyone else. We should not also try to make people look small in our lives. उसको किसी को हमें तुच्छ नहीं समझना है. We must always remember, each and every one of us, we are descendants of Abraham. हम लोग सब एब्राहम के हम लोग संतान हैं. We are all God's children. Therefore, let us never do anything which is wrong, because God looks at these things very seriously. परमेश्वर बड़े गंभीर तरीके से प्रभु इन चीज़ों को देखते हैं. So therefore, let us be careful in our words, in our action, in our response, in our behavior. Be careful in your family. Be careful in your church. Be careful in your work of place. Be careful in the society you live in. In every place we need to be careful. The same rule applies in all these places. Never try to look down upon people or make them small. अपने नज़र में उनको नीचे मत करो, ऐसा नहीं. प्रभु का तरीका नहीं है. हम सब प्रभु के बच्चे हैं. So Abraham was to receive the great blessings of God. Abraham को परमेश्वर के ढेर आशीषें मिलने वाली थी. If he would obey God, if he would remain in that place, then he would not receive the blessings of God. अगर वो अपने ही देश में रह जाता तो उस तरीके से इसको परमेश्वर की जो एडिशनल ब्लेसिंग्स थी वो उसको नहीं मिल पाती. ऑफ कोर्स जो ब्लेसिंग्स थी उसके पास वो तो ऑलरेडी थी उसके पास, बट गॉड वांटेड टू ब्लेस हिम फर्दर. फॉर दैट ही नीडेड टू मूव आउट. इन द सेम वे वी ऑल्सो वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमें मिल जाए, बट वी मस्ट ओबे द लॉर्ड बाय लीविंग. By leaving, it doesn't necessarily mean physical leaving. In some lives it could be, but there are many things which we need to leave in our lives, which we would look at sometime later today. तो कई चीज़ें हम लोग को छोड़ने की ज़रूरत है. इसका ये मतलब नहीं कि फिजिकली लीव करने की ज़रूरत है, मगर कुछ चीज़ें हमारे अंदर उनसे उनको हटाने की ज़रूरत है, उनको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. Verse 4 says, so Abraham left as the Lord told him. Let's read in Hindi. यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला. और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था. Abraham did as the Lord told him to do. He did not turn back. He saw no proof. There was no visible proof before him. He just went on what God had spoken to him. That was good enough for him. उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, उसने कुछ देखा नहीं था, परमेश्वर ने उसको प्राकृतिक रीति से कोई ज़मीन नहीं दिखाई थी. सिर्फ एक प्रॉमिस था, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन, आई विल गिव यू द लैंड. एंड इब्राहिम ने परमेश्वर को के ऊपर विश्वास करके वो आगे निकला. दैट वाज इनफ प्रूफ फॉर हिम. गॉड स्पीकिंग टू हिम was sufficient proof for him. परमेश्वर ने उससे बात किया, वो उसके लिए sufficient proof था. Now that must be for us also. Sometimes we say, Lord, हमें ये देखना है, जो आप करना चाहते हैं मुझे सबूत चाहिए. Our only proof must be like Abraham. प्रभु आपने अगर हमसे बात किया है, आप इसको ज़रूर पूरा भी आप करेंगे. How much proof is sufficient for us? Many a child of God, he begins to walk, चलने लगता है, फिर डगमगा जाता है. प्रभु आपने बोला तो था पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है. You had spoken, Lord, but I can't see something. But let us be like Abraham. Lord, you have spoken, that is sufficient. और वो वहाँ से निकला. And we know it was not easy in those days to move out, but he moved out in faith. He took all that which we had and he moved on. So whatever God has already told us, let us
take it, let us obey, let us move. We must remember that if God is speaking into our hearts, परमेश्वर अगर हमारे दिल के अंदर प्रभु ने बात किया किसी चीज़ के लिए, उसको we must hold on to it, उसको हमें पकड़ कर रखना चाहिए. Let us be like Abraham. Abraham से हमें सीखना चाहिए. So let us remember that at that time he was, as we read, he was 75 years old. He is not a young man of 25 or a young man of 35 that he can relocate easily. वो एक बुजुर्ग आदमी है, 75 साल का है, कोई जवान बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है जो 25 साल का हो या 35 साल का हो. उस एज ग्रुप में मूवमेंट करना बड़ा आसान होता है. हम लोग, मैं 35 का था जब हम लोग चंडीगढ़ आए थे, मोना और हम आए थे. ऑफ कोर्स मोना वाज 5 years younger, 30-31 की होगी, और हमारे 2 छोटे बच्चे थे. हमारे लिए आसान था क्योंकि हम जवान थे. परमेश्वर की आवाज़ हमने सुनी, हम निकले. कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कहाँ रहोगे, क्या होगा, कैसे होएगा, कुछ नहीं पता, नो आइडिया, बस चले गए. हमारे लिए आसान था. इब्राहिम के लिए इट वॉज नॉट ईजी. 75 साल का है. ही हैज़ मैनी liabilities, many issues which he must look into. But he had one thing, he had heard God very clearly. उसने परमेश्वर की आवाज़ बड़ी clearly उसने सुन लिया था, और उसीलिए वो आगे चला. Abraham means high father. High father हिंदी में कहेंगे ऊंचा पिता, बड़ा पिता कहेंगे. इब्राहिम, उसका नाम इब्राहिम था, ABRAM. बाद में परमेश्वर ने उसी नाम को एब्राहम में बदला. इब्राहिम मीन्स फादर ऑफ मैनी, बहुतों के पिता. और हम जानते हैं that was keeping in line with the promise which God had given Abraham, that he will be the father of many people. And at that moment he had not become the father of many. उस समय पर जब परमेश्वर इससे बात करते हैं, verse 1, 2, 3 and 4 में, उसके पास कोई भी संतान नहीं थे, एक भी बच्चा नहीं था. But here God is saying, you will be Abraham. Later on, of course, God says, you will be the father of many. No children at that time, but he was to become the father of many. And this is how God viewed Abraham. उस रीति से परमेश्वर जो है इब्राहिम को देख रहा है, as the father of many. So the present condition doesn't matter. In the same way, हमारे जीवन में भी कई बार होता है कि हम मुश्किल समय के थ्रू हम लोग जाते हैं, लगता है जैसे हम टूट गए हैं, कुछ नहीं हमारे पास आत्मिक रीति से भी. बट रिमेंबर, परमेश्वर आपको किस नज़र से देखते हैं वो ज़रूरी है हमारे लिए. सो डोंट पुट डेफिनेशंस विच human beings have given us. The first name was given maybe by his father, maybe by his mother, we don't know. But the second name was given by God himself. In the same way, परमेश्वर ने आपको और हमको भी कई अच्छे अच्छे नाम दिए हैं. And during this week, इस हफ्ते में ज़रूर हम लोग चेक करें कि किस किस नाम से आप लोग जाने जाते हैं. हम सब जाने जाते हैं. We are sons of God, that is one. इस तरीके से आप चेक करना बाइबल में कितने कितने नाम परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए रखे. एंड देन बिगिन टू एड्रेस आवरसेल्व्स द वे गॉड एड्रेसेस अस. उस रीति पर हम अपने आप को हम एड्रेस कर सके जिस परमेश्वर देखते हैं. गॉड लुक्ड एट नॉट एज एब्राहम बट एज एब्राहम, द फादर ऑफ मेनी. सो हिज डिसीजंस वुड बेनिफिट many people, but at the moment you could not see much benefit, but his decision would benefit many in the future. In the same way, our decisions which we make, it might benefit us in the present in a small way, but it will benefit us much more in a bigger way in the future. जो निर्णय आप और हम लेते हैं वो आगे जाके हमें बेनिफिट करते हैं. ये आपने अपने जीवन में ऑलरेडी देखा होगा. I'm very sure this is not a new teaching for any one of us. जो निर्णय हम लोग अच्छे निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं, it becomes a blessing for us, becomes a blessing for our family and for other people also. The simple reason how you gave your life to Jesus. Now through that, आपने जब अपना जीवन प्रभु को दिया, आपने I'm sure औरों को बताया है प्रभु के बारे में, और लोग भी प्रभु में आ गए हैं. And their lives then will be telling other people. It's a blessing. Your decision which you took 5 years ago, 1 year ago, 30 years ago, 40 years ago, it is a blessing for yourself, it's also a blessing for others. Genesis chapter 12 and verse 6, उत्पत्ति chapter 12 और verse 6 पढ़ते हैं. उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शाकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुँचा. उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे. So here the Bible says उस देश में कनानी लोग रहते थे. The Canaanites were then living in that land. Now
When Abraham went there, when he saw the land, जब उसने उस देश को देखा, वहाँ पर उसने देखे कनानी वहाँ पर रहते हैं, और प्रभु कह रहे हैं ये देश में तुमको दे दूंगा, और रह रहे हैं कनानी वहाँ पर. Then what does verse 7 say? Let's read verse 7. तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसे वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई. So the Canaanites were living there in the land, but the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. तो कनानी उस देश में रह रहे थे, पर परमेश्वर ने वहाँ पर प्रभु इब्राहिम के सामने आए और परमेश्वर ने कहा कि ये देश मैं तुमको दूंगा. ना Abraham he saw the Canaanites. इब्राहिम ने उन कनानियों को उसने देखा. They were visible in the land, all over the land. They were ruling the land. They were governing the land. They were the boss of the land. And right there God says, this place I will give you. You don't go by what you see, Abraham. जो तुम देखते हो उसके हिसाब से मत चलो. जो तुम देख रहे हो तुम्हें लग रहा है कनानी राज्य कर रहे हैं, वो शत्रु ने कब्जा करके रखा हुआ है. The enemy has taken over. But don't worry, Abraham, I have given this. That is how God works. You see something totally contrary, and then God says, but I will give it to you. Don't worry. You move on in faith. I will give it to you. We need to trust in the one who speaks. हमारा विश्वास होना चाहिए उनके ऊपर जो बोलते हैं, जिन्होंने कहा. So they rule the land, they control the land, all that is fine, but God says, I will give it to you. Contrary to what you see, Abraham, trust in my plan. And God in His mercy, He appeared to Abraham and God showed him this place. Don't be discouraged by what you see, Abraham. In the same way, we Abrahams also should not be discouraged by what we see. हम Abraham जो कहलाते हैं, हमें भी कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, निराशा में नहीं जाना चाहिए जो हम देखते हैं. Let us be encouraged by whom we see. Not what you see, but let us be encouraged by whom we see. जो हम देखते हैं उससे निराश मत हो, उनको देखो और उनसे फिर हमें उत्साह मिलता है. हमें उत्साह मिलता है by what God says. जो परमेश्वर कहते हैं उनसे हमें उत्साह मिलता है. That's why God appeared to Abraham. And Abraham, he saw God. And Abraham heard God. And then he saw the land. And he saw the land controlled by the enemy, but it didn't discourage him. Why? Because he saw God. It's important to see the God who speaks to us. The person whom we see is more important than what we see in our lives. So that was sufficient for Abraham. वो Abraham के लिए sufficient, काफ़ी था, पर्याप्त था. Yeah. Now he didn't go by what he saw, but he went by whom he saw. Not by what he saw by his physical eyes. अपने प्राकृतिक आँखों से जो उसने देखा उसके हिसाब से नहीं चला, बल्कि जो उसने आत्मिक आँखों से देखा, दिल की आँखों से उसने देखा, उसके मुताबिक Abraham आगे बढ़ा. Abraham, he could see much into the distant future. Abraham काफ़ी कुछ आगे देख पा रहा था, बहुत कुछ आगे देख रहा था वो. God said, I will make you into a blessing, I will make you into a great nation, your descendants will rule over this land. Now that is sometime in the distant future. But Abraham is able to see that. His descendants would sometime in the future inherit the land. And we know that this time came 500 years later after the promise was given. Abraham didn't see that day. 500 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली वो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर का पूरा हुआ इब्राहिम के जीवन में, कि इब्राहिम के संतान उस नगर के ऊपर, उस देश के ऊपर उन्होंने फिर कब्जा करा और उसके ऊपर शासन करने लगे. That's why I'm saying Abraham could see into the distant future. बहुत आगे देखने लगा. अक्सर हम कहेंगे प्रभु इतना क्या करना, 500 साल के बाद क्या मेरे संतान के साथ होएगा, मुझे क्या पड़ी है, अगर मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, मज़ा मिल जाए, वही काफ़ी है. मगर इब्राहिम ऐसा नहीं था. इब्राहिम को चिंता था कि 500 साल के बाद भी क्या होगा. इसलिए हम कहते हैं कि इब्राहिम जो था बहुत साल आगे देख सकता था, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम भी उस तरीके से हो सके, हम लोग आगे का देख सके. 500 साल के बाद क्या होगा,
किसी से भी आप पूछे आप क्या कुछ प्लान कर रहे हो 500 साल के बाद क्या होगा, हमें क्या पड़ी है? Nobody is concerned, not Abraham. We call him a father of faith. विश्वास के हम पिता इसको कहते हैं. क्यों कहते हैं? He was different. He was not like me, totally different. He could see well ahead into the future. What was going to happen 500 years later, he was concerned for that. And that is what encouraged him, that is what caused him to live the way he lived. We can say कि Abraham इतना अच्छा जीवन उसने जिया कैसे? It's all because of what he saw by eyes of faith. His priorities were for the future. Many a child of God, उसके प्रायोरिटी सिर्फ अभी के लिए रहते हैं. अभी के लिए आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए, अगला साल ठीक हो जाए, वो उतना काफ़ी है प्रभु. मगर इब्राहिम ऐसे नहीं जीता था. इब्राहिम बहुत आगे के लिए जीता था. That is why his decisions, of course he made wrong decisions on the way, but they were corrected by God in his mercy. He took correct decisions. गलत निर्णय उसने लिए, मैं परमेश्वर ने सहायता किया उसको सही करने के लिए. But his main decisions were always clear and he didn't move out from there. जो मेन उसका निर्णय था वहाँ से वो डगमगाया नहीं. Genesis chapter 12 and verse 1 हिंदी में. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. So God said to Abraham, leave your country. Now leave is a very important word to start anything new. छोड़ के आगे चलने के द्वारा ही हम कोई नई चीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं. A child leaves class 12 को छोड़ता है एक बच्चा कॉलेज में जाने के लिए. In the same way a child in college, he leaves college and he starts working. वो कॉलेज छोड़ता है, काम करने लगता है. उसी रीति से एक लड़का लड़की जब शादी करने चाहते हैं प्रभु की इच्छा में, अपने माँ बाप को छोड़ के वो एक परिवार बन जाते हैं. उसके बाद एक नया परिवार शुरू होता है. We need to leave to start something new. You cannot start something new without leaving. There are many things which we need to leave, and Abraham was willing to leave. Some people they leave their country also to settle abroad to start something new. Maybe start a new business or start something new. We need to leave in the natural, we need to leave to start something new. And so it is in the spiritual. In the spiritual also, we need to leave. हमें आत्मिक रीति से भी कुछ चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है कि हम कुछ नया चीज़ हम लोग शुरू करें. So Abraham, he had to leave many things. We also will have to leave many things. Every person called by God throughout the centuries, they left many things. जिन जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया, जब आप पवित्र शास्त्र देखते हैं, they left many things. कई चीज़ें इन्होंने छोड़ी. Something or the other. Abraham left his father's house. Abraham ने अपने पिता के घर को छोड़ा. याकूब ने अपने पुराने नेचर को छोड़ा. पतरस ने अपने पुराने नेचर को छोड़ा. So there's something or the other left. Something spiritual, something natural, something मस्तिष्क में, किसी और चीज़ में. Peter had to leave his fishing and so forth. We leave something to start something new. So we also need to leave the bad. जो चीज़ें खराब हैं उनको हमें छोड़ने की ज़रूरत है. हम नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नया काम प्रभु नहीं कर सकते. ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम वो खराब चीज़ को भी हमारे हाथ में हम पकड़े हुए हैं और परमेश्वर की योजनाओं में भी हम चलना चाहते हैं. It's not possible. You have to leave this. If you want to walk after God, we have to leave those bad things. Also those not so good things also. Also they might be good things, but they are still not the best of God. अच्छे चीज़ भी हो सकते हैं, मगर परमेश्वर के नज़र में सबसे उत्तीर्ण नहीं है, सबसे अच्छे नहीं है. उन चीज़ों को भी हमें छोड़ने की ज़रूरत है. Leave those things which are not beneficial for us. जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उन चीज़ों को भी हमें छोड़ने की ज़रूरत है. We need to leave. You must remember. All of us, we desire all the good things. We want to grow in God. हम चाहते हैं कि हम प्रभु आप में हम बढ़ें. But this principle is important of Genesis chapter 12 verse 1. Leave. छोड़ने की ज़रूरत है. हमारे तौर तरीक़ों को छोड़ने की ज़रूरत, सोच को छोड़ने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है. Are we willing to forgo our sin? अपने पाप को क्या छोड़ने के लिए हम राज़ी हैं? Are we willing to forgo our pride, our ego? हमारा घमंड, हमारा ईगो, क्या उसको छोड़ने की हम चाहते हैं? क्या हमारे तौर तरीके हैं करने के, सोचने के, उसको छोड़ने के लिए हम क्या तैयार हैं?
थोड़ी सी भी मात्रा में अगर हम छोड़ेंगे, प्रभु विल हेल्प अस टू गो. We know initially when he started walking out of his father's house, he would be just maybe one step away from his father's house. At least he's made an attempt. In the same way, we might be just one step away from those bad things which are controlling us, but as we keep progressing, the distance becomes greater. So don't be worried about if you are just moved one step away from that bad thing which you were involved with. इसका चिंता ना करें कि चलो हम प्रभु में तो सिर्फ एक कदम दूर ही हूँ उस खराब चीज़ से जो जिसके पीछे मैं लगा था, थोड़ा सा दूर हो गया हूँ मगर ज़्यादा दूर नहीं हुआ हूँ. डोंट वरी, चलते रहो. एक कदम 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बहुत दूरी हो जाएगी उस खराब चीज़ों से आपके जीवन में. उसी रीति से हम परमेश्वर को एक नए तरीके से हम अनुभव कर सकते हैं और परमेश्वर के उन आशीषों को हम लोग अनुभव कर सकते हैं. So slowly we need to leave those things. Whatever God puts his finger at, हमारे जीवन में जो प्रभु हमारे जीवन में रखते हैं, उंगली रखते हैं, उन सब चीज़ों को हम हटाते जा सके. And then we can go and meet with the King of Kings. राजाओं के राजा से लगातार फिर हम मुलाकात कर सकते हैं. जो चीज़ें दुनिया में हैं, दिखती हैं, वो फिर आस्ता आस्ता बड़ी धीमी सी हो जाएंगी. God will become more important for us. So Abraham had this journey of faith. एक विश्वास का उसका एक जर्नी था. He had a trust on God. परमेश्वर पर वो विश्वास करता था. Now this was not just at the beginning of his journey. सिर्फ शुरुआत में नहीं था. ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसके पहले साल में जब कनान देश में आया, एक साल के अंदर ही वो within 1 year he was there in the land of Canaan when he left Ur of the Chaldees, his father's house. उसका विश्वास सिर्फ उसी एक साल में नजर नहीं आता है, उस साल में नजर आता है. But his faith is seen throughout his life. उसका जो विश्वास का जो जीवन है नजर आता है throughout the journey of life. उसका जीवन का जो यात्रा था उसके थ्रू लगातार चलता जाता है, सिर्फ शुरुआत में नहीं, लगातार. Many a child of God, he started his journey with God in faith. कई प्रभु के बच्चे होते हैं जो विश्वास से अपना यात्रा जो है शुरू करते हैं परमेश्वर के साथ. बट आफ्टर गॉड ब्लेसेस देम, बट जब प्रभु उनको आशीषित करते हैं, फिर उनके जो आशीषें हैं, जो ब्लेसिंग्स है, वो उनका ट्रस्ट बन जाता है. परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं और फिर जिन चीज़ों से प्रभु उनको ब्लेस करते हैं वो उनका गढ़ बन जाता है, उनका विश्वास बन जाता है परमेश्वर में. फिर वो चीज़ें बन जाती हैं. बट ऑफ कोर्स वी नो गॉड हैज़ वेज ऑफ डीलिंग विद इट. परमेश्वर ने फिर इब्राहिम को कहा, इब्राहिम अब तो जो तुम्हारा बच्चा है उसको तुम मुझे समर्पित कर दो. एंड ही वॉज एबल टू सबमिट गॉड, गिव आइजक टू गॉड. इब्राहिम ने उस सिक्योरिटी को, उस ट्रस्ट को परमेश्वर को देने के लिए वो राजी था. So whenever the blessing becomes our trust, then our relationship with God, it begins to suffer. जब जो भी आशीष प्रभु हमें देते हैं, अगर वो हमारा विश्वास का गढ़ बन जाता है, तब परमेश्वर आस्ता आस्ता दूर हो जाते हैं हमसे अपने आप ही. बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू बी आवर फुल ट्रस्ट. ही वॉन्ट्स टू बी आवर फुल ट्रस्ट. और जब हम किसी और चीज़ को अपना विश्वास बना लेते हैं, अपना ट्रस्ट बना लेते हैं, अपना गढ़ बना लेते हैं, फिर परमेश्वर अपने आप ही दुखी होते हुए प्रभु दूर हो जाते हैं. फिर हमें लगेगा कि प्रभु ये जीवन थोड़ा सूखा हो रहा है, आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मज़ा नहीं आ रहा है. मैं बाइबल पढ़ता हूँ मगर जैसे कोई किताब पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ता हूँ. प्रार्थना कर रहा हूँ तो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं. क्यों? इसीलिए होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. योर स्पिरिचुअल लाइफ इज जस्ट नॉट ऑन संडे. हमारा जो आत्मिक जीवन सिर्फ संडे को नहीं होता, हम यहाँ बैठते हैं और हम आत्मिक गीत गाते हैं. हमारा रोज का जीवन, आपका विश्वास का गढ़ क्या है? वो आपका आत्मिक जीवन है. आपका विश्वास का गढ़ क्या है? वो आपका आत्मिक जीवन है. वो इब्राहिम के जीवन में हमें नजर आता है कि परमेश्वर उसके गढ़ थे. गॉड वॉज हिज फोर्ट्रेस, गॉड वॉज हिज ट्रस्ट. परमेश्वर उसके विश्वास थे. 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, दूसरा कुरिन्थियों 5 verse 7. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट. हम विश्वास से चलते हैं, देखने के हिसाब से हम
नहीं चलते। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें बताता है। और इब्राहिम ने इस चीज़ को जिया। ही डिड नॉट लिव बाय साइट, ही डिडंट लिव बाय व्हाट ही सॉ। जिस चीज़ों को वो देखता था उससे नहीं जीता था, वो विश्वास से ही आगे बढ़ता था। So that's why it's important for us that we must also keep God as our trust, as our faith. And then we can keep on and we can fulfill what God has for us. So we must ensure that God remains our strength. हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बल रहे, हमारा विश्वास रहे, साथ साथ में परमेश्वर हमारे दोस्त रहे। He is a friend. He called Abraham my friend. जब परमेश्वर ने इब्राहिम के बारे में बातचीत की, प्रभु ने कहा मेरा दोस्त इब्राहिम। परमेश्वर के साथ अपनी दोस्ती रखो। यस, बॉस है, बॉस के पास हम अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, अच्छी बात है। बॉस हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, दैट्स ग्रेट, बट वी मस्ट एंश्योर दैट आवर फ्रेंडशिप विद गॉड इज मेंटेन्ड। कोई भी दोस्त के साथ, आपने जो अच्छे दोस्त होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने, जब तक हमारी आयु तक आप लोग आएंगे तो कई दोस्त लोगों से मिल चुके होंगे, कई दोस्तों से आपकी दोस्ती रही होगी। जो दोस्त बेकार के होंगे उन्होंने, आपने उनको अलग कर दिया होगा। जो दोस्त सही रहते हैं, दे आर फेथफुल, दे आर ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, आपने उनके साथ अपनी दोस्ती रखी होगी। दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज डू। दैट इज़ व्हाई वी मस्ट कीप गॉड एज आवर फ्रेंड एंड वी नो दैट ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड। उनमें कोई भी कमी नहीं है, इन दोस्त में, परमेश्वर दोस्त में कोई भी कमी नहीं है। जितना भी हम उस दोस्ती को आप और हम बढ़ाएंगे, it will be beneficial for us. That will keep our hearts warm. That will keep our hearts connected with our friend. So we must maintain and develop our relationship and our friendship with God. And we know to maintain any relationship there is always a give and take. एक हरदम देना होता है, लेना होता है, एक बलिदान करना पड़ता है दोस्ती के लिए। हस्बैंड वाइफ में भी जब दोस्ती होती है तो हमें देना पड़ता है, लेना पड़ता है, देना पड़ता है। अगर आपको अपने बच्चों के साथ दोस्ती करना है, कलीसिया में दोस्ती करना पड़ता है, तो सब चीज़ में देना लेना होता है। वन साइडेड कोई भी प्रेम नहीं होता। अगर आप सिर्फ दे रहे हो तो वो कोई दोस्ती नहीं है। अगर आप सिर्फ दे रहे हो तो वो कोई दोस्ती नहीं है। अगर आप सिर्फ ले रहे हो तो वो भी कोई दोस्ती नहीं है। दोस्ती में हरदम देना होता है और लेना होता है। इन एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में देना होता है और लेना होता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, थोड़े टाइम के बाद वो सूख जाएगा और फिर हमारे से वो दूर जा सकता है वो दोस्ती। सो वी मस्ट मेंटेन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। वी मस्ट सी व्हाट वी कैन गिव टू गॉड। हमें देखना है हमें क्या हम दे सकते हैं परमेश्वर को। दाऊद का रिस्पॉन्स ऐसे ही था, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु आपके लिए। क्या परमेश्वर ने उसको बोला मंदिर बनाओ? नहीं, प्रभु ने नहीं बोला। दाऊद को अपने आप ही लगा मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद गॉड, वी मस्ट सी हाउ वी कैन गिव टू गॉड। क्या जीवन का क्षेत्र है, क्या फिजिकल बॉडी का क्षेत्र है जो हम परमेश्वर को हम समर्पित हम कर सकते हैं, अगर हमें अपनी दोस्ती परमेश्वर के साथ बढ़ानी है। एंड मे गॉड हेल्प अस दैट इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर अस। It is the whole duty and privilege of us human beings to maintain our relationship with God. But there is always a give and there is also a take. The meaning of Canaan in Hebrew means humiliated. Canaan का मतलब है humiliated. What is humiliated in Hindi? या किसी को शर्मिंदा करना, humiliate करना, किसी को शर्मिंदा करना। कनान का मतलब है शर्मिंदा करना। But all of us know that when the people of God took over the land, then what was the land called? The same Canaan land जो था, उस the promised land, या उसका नाम क्या था? Israel, बिल्कुल। And Israel means he who reigns with God, he who reigns as God. वही कनान देश जिसका मतलब है निंदा, उसी देश को परमेश्वर ने इजराइल बना दिया। इजराइल मतलब He who reigns with God, he who reigns as God, परमेश्वर के साथ शासन करता है, परमेश्वर के लिए शासन करता है। वही लैंड ऑफ निंदा जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से ऐसा जगह बन जाता है जहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर शासन करते हैं। Where God begins to reign through His people. So let's not worry about the humiliation the enemy Satan brings upon us.
इसका हम चिंता ना करें। जो ह्यूमिलिएशन, जो निंदा शैतान लाता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग लाते हैं, उसका चिंता हम ना करें। वही कनान देश जिस विच वाज द लैंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, दैट बिकेम अ लैंड वेयर गॉड रेन्स, जहाँ पे परमेश्वर शासन करते हैं। So therefore it's important for us to allow God to rule in us. When we allow God to rule in us, He changes things. Same land, same ground, but then God changes things. Somebody else was ruling, God removes that somebody else who's ruling, and He begins to rule through you. And that same land of humiliation becomes a place where God is supreme, where God begins to reign. So let us not be fearful when you see too much of Canaanites in the land of Canaan. जब आपको शत्रु नजर आते हैं उस देश में, चिंता नहीं करो. We'll end with some words with rhyme. Now these words with rhyme cannot be translated, but I'll speak it in English and you can try to understand. When we believe, we will leave. Believe rhymes with leave. When we believe, we will leave. जब हम विश्वास करेंगे, हम छोड़ेंगे. When we leave, we will perceive. Now perceive also rhymes with leave. When we leave, we will perceive. हम देखेंगे. जब इब्राहिम ने छोड़ा, तब उसने देखा, आगे जाके देखा. 1 साल के अंदर उसने देखा उस ज़मीन को कि हाँ, परमेश्वर कुछ ये चीज़ प्रभु देने जा रहे हैं. And when we perceive, then we will conceive. Conceive means गर्भवती होना. फिर हमारे अंदर वो प्रॉमिस परमेश्वर का अंदर आ जाएगा. हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपका गर्भ, या गर्भ इज वूम ना. हाँ, आपका गर्भ क्या है? हम सब के पास गर्भ है. क्या है वो? हमारा दिल, या हमारा दिल है. यहाँ पर हम कंसीव करते हैं परमेश्वर के प्रोमिसेस को. प्रभु का जीवन भी यहीं कंसीव होता है. यीशु मसीह का जो जीवन है वो यहीं पर आता है. जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, यीशु मसीह एक यहाँ पर आपके हमारे अंदर दिल में आकर वो रहने लगे. अब प्रभु यीशु मसीह को बढ़ना. इन द सेम वे दोस प्रोमिसेस ऑफ गॉड आल्सो नीड टू ग्रो. व्हेन वी परसीव, वी विल कंसीव, एंड व्हेन वी कंसीव, देन वी विल रिसीव. इट ऑल राइम्स वेरी वेल, एंड दैट इज अ फैक्ट इन आवर लाइव्स आल्सो. जब हम उसको गर्भवती होएंगे, हम फिर रिसीव भी हम करेंगे. परमेश्वर से आप और हम प्राप्त करेंगे. सो लेट्स फाइंड आवर encouragement फ्रॉम Abraham, a man of faith, a father of faith, as some people call him. एक पिता, विश्वास के एक पिता है, जैसे कई लोग उसको कहते हैं. इनसे हमें उत्साह मिलना चाहिए, उत्साह हमें लेना चाहिए, और परमेश्वर के पीछे हमें चलते जाना चाहिए. हम समाप्त करते हैं. I'll request Brother Anthony to please close in prayer. भाई एंथनी प्रार्थना करें.